within 80 days of marriage, within 80 days, just 80 days of marriage, she committed suicide. इंडिया करंटली फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुका है, लेकिन इंडिया में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वहीं की वहीं हैं। मैं बात करने वाली हूँ डाउरी की। डाउरी के केसेस स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। स्टिल वुमेन्स को अपने ससुराल में डाउरी की वजह से डीए का सामना करना पड़ता है, और डाउरी के केसेस की वजह से अभी भी बहुत सारी वुमेन्स की जान चली जाती है। 2022 का डाटा बता रही हूँ मैं, क्योंकि नया डाटा अभी तक अपडेट ही नहीं है। 2022 में 6,450 केसेस हुए हैं डाउरी डेथ्स के, वुमेन्स के, और अभी नया डाटा है ही नहीं। और ये वो केसेस हैं जो कि रिकॉर्ड हुए, जो रिकॉर्डेड ही नहीं होते उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते कि कितने केसेस हैं। जब भी डाउरी, ऑनर किलिंग और बाल विवाह की बात आती है, हमारे दिमाग में ये आता है कि ये तो गांव में होता है। अब ये ऐसा शहरों में तो होता ही नहीं है। गांव के लोगों की सोच इस तरह की होती है। शहर के लोग तो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, काफ़ी सिविलाइज्ड हैं और एजुकेटेड है। जो लोग एजुकेटेड नहीं हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है। पर ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें जिस फैमिली ने ये सब कुछ किया वो वेल एजुकेटेड, वेल नोन, और ना कि कोई गरीब फैमिली बल्कि एक रिच फैमिली में ये सब कुछ हुआ। मैं बात कर रही हूँ रिथानिया के केस की, जिसके बारे में तुमने सोशल मीडिया पे एक दो रील्स में देखा होगा। கல்யாணம் நடந்து 5 நாள்ல இருந்து பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அப்பா இந்த மாதிரி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி விசாரிச்சதுல ஏதோ தவறு இருக்குது. நீங்க விசாரிச்சு சொன்ன மாதிரி அவன் நல்ல குட் கேரக்டர்லாம் இல்ல பையன். அந்த ஃபேமிலியும் அந்த மாதிரி இல்ல. போட்டுக்கிற நகையெல்லாம் தங்கமான்னு சொல்லி காதுல இருக்க சொரையெல்லாம் கழட்டி கொடுன்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கிறாங்க. மீதி நகையெல்லாம் எங்க? இதெல்லாம் நான் கேட்டதை சொல்லக்கூடாது. நீ எங்க அப்பாட்ட கேட்டு வாங்கிட்டு வரும். பிசிக்கலா அந்த பிள்ளை வேற சைக்கோத்தனமா ஹேண்டில் பண்ணிருக்கான். மேரேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியில இருந்து அவளை ஒவ்வொரு விஷயத்துலயும் எங்களுக்கே தெரியாம அவளை த்ரெட்டன் பண்ணிருக்காரு. நிறைய விஷயத்துல அழுக வச்சு சந்தோஷப்பட்டிருக்காரு. அது எனக்கு தெரிய வந்த உடனே அவ அப்பா அம்மாட்ட சொல்லாத அப்படின்னு சொன்னா. இந்த பிள்ளை ஏன் சொல்லினா நான் கழுத்து எடுத்துக்குவேன், நான் செத்து போயிருவேன் அப்பா அம்மா சொன்னா. டாய்லெட் போனா கூட வந்து நின்னுக்குவாப்லையா. நான் நிம்மதியா இல்ல, நான் சந்தோஷமா இல்ல. என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, ஒழுங்கா இங்க சாப்பாடு கூட போட மாட்டேங்கிறாங்களா, சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப அசிங்கமா பேசுறாங்க, ஏன் இப்படி தின்னுட்டே இருக்க, சாப்பாடே பார்த்தது இல்லையாங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப கேவலமா பேசுறாங்கடா. வெளி தோட்டத்துக்கு சிரிச்சுட்டு அத்தா மாமான்னு அம்மா நம்பாதம்மா அப்படின்னு கடைசியில தான் சொன்னான். நினைச்சிருக்காங்க அக்காவை நாய் மாடு கூட அப்படி ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு புண்ணு இருந்தா கூட அதை நசுக்கி பார்த்து சிரிப்பான்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளவு ஒரு சைக்கோவா இருந்தது. நாளைக்கு எப்பவுமே பெட்ரூம்ல இருந்துட்டு பயங்கர காய்க்கிறான், கையை காலை கட்டி போட்டு என்னமோ பண்ணிருந்தான். திருகமா நடந்திருக்கிறாரு. இல்லைக்கு ஒண்ணுக்கும் வர முடியாம, ரெண்டுக்கும் வர முடியாம, வீட்டுக்குள்ள இருந்தா ஒரு மாதிரியா, சண்டை வந்து முன்னாடி வந்தாலும் அக்கறை பாச மாட்டான். தங்கமானவையன் யாரும் நம்புவாங்க. உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அரக்கனா இருக்கு. सोशल मीडिया के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया में आई डोंट थिंक सो इतना मेन स्ट्रीम मीडिया में ये केस आया है जितना इसको आना चाहिए था। विद इन 80 डेज ऑफ मैरिज, विद इन 80 डेज, जस्ट 80 डेज ऑफ मैरिज, शी कमिटेड सुसाइड। क्यों? क्योंकि उसके जो हस्बैंड और इन लॉज हैं, दे आर मेंटली एंड फिजिकली हरेसिंग हर। रीज़न क्या था? डाउरी के पैसे। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। रिथानिया की शादी, जिसकी जस्ट एज 27 ईयर थी, उसकी शादी केविन कुमार से होती है जिसकी एज है 28 ईयर ओल्ड। एंड ये है उनकी वेडिंग पिक्चर। कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में। पर क्या किसी को पता है कि ये आदमी इस लड़की के साथ आगे जाके क्या करने वाला है? तो इनकी शादी हुई 11 अप्रैल 2025 में, और 29 अप्रैल को लड़की की जो बॉडी है वो उसकी कार में मिली। मरने से पहले उसने 7 वॉइस नोट अपने पापा को भेजे। उन वॉइस नोट में जो भी उसने बोला, आई डोंट थिंक सो किसी के भी पापा में इतनी हिम्मत है कि वो उन वॉइस नोट को सुने, और किसी के पापा को कभी इस तरह के वॉइस नोट कभी उसकी बेटी ना भेजे। शादी 11 अप्रैल 2025 में होती है। रिथानिया की फैमिली लेविश डाउरी देती है केविन की फैमिली को। 300 सॉवरेन्स ऑफ गोल्ड, 70 लाख रुपीज वॉल्वो, एंड प्रॉमिस किया गया था 200 सॉवरेन्स ऑफ गोल्ड मोर। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? सब कुछ तो सही है, दोनों फैमिली अच्छी, वेल एजुकेटेड है, अच्छी खासी रिच है, इतना सब कुछ पैसा लग चुका है, मतलब 2.5 करोड़ शादी में लग चुका है। एंड इसके साथ साथ 70 लाख की वॉल्वो लड़के को मिली है शादी में, और 300 सॉवरेन्स ऑफ गोल्ड मिला है। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है वो जो बाकी का सॉवरेन्स नहीं मिला। रिथानिया के पापा के अकॉर्डिंग शादी के 2 हफ्ते ही सही से बीते, तीसरे हफ्ते से झगड़े शुरू हो गए। 20 दिन बाद केविन, जो कि रिथानिया का पति है, वो उसको वापस लेने आ जाता है। फिर उसके बाद दोबारा झगड़े होते हैं और रिथानिया वापस अपने मायके आ जाती है, और केविन बोलता है कुछ भी नहीं हुआ, हमारे बीच में झगड़े नहीं हुए हैं, ये बस मायके में रहना चाहती है, इसलिए मैं इसको यहाँ छोड़ने के लिए आया हूँ। जब सब लोगों ने रिथानिया से पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कुछ नहीं, वो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। 27 जून को केविन दोबारा मिलने के लिए आया, और उस समय रिथानिया के पापा ने दोनों से मिलकर बात की कि तुम्हारे बीच में प्रॉब्लम क्या है।
जो कि जनरली हर पेरेंट्स करते हैं। कोई पेरेंट्स थोड़ी ना चाहेगा उनके बच्चों का घर बर्बाद हो जाए, और जबकि इतना सब कुछ हुआ है उस शादी में, लाइक 2.5 करोड़ की शादी रही है वो। उस टाइम पे दोनों ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। रितान्या ने काफ़ी बार अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता, ये लोग मुझे परेशान करते हैं, और उसके पापा ने कहा बेटा कोई बात नहीं, लाइक तुझे कामली चीज़ें हैंडल करनी होगी। हर लड़की के साथ ऐसे ही होता है, जब भी उसके ससुराल वाले उसको परेशान करते हैं, वो अपने मायके फ़ोन करती है अपने पापा को, मम्मी को, भाई को, तो सब उसको बोल देते हैं तुझे संभालना होगा, वो तेरा घर है। जो वो लड़की सह रही होती है उससे बेटा हमने तेरी शादी कर दी है, वो ही तेरा घर है, तुझे अपना घर खुद संभालना है, यह हर लड़की को बोल दिया जाता है। सो बेसिकली शादी के 2 हफ्तों के बाद केविन और उसकी फैमिली रिथान्या को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर कर रहे थे उन 200 सॉवरेन्स के लिए। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला है कि अपने घर से पैसे लेके आ, क्योंकि हमें नया बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए हमें 100 करोड़ रुपए चाहिए। तुम लोग खुद इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हें लड़की से पैसे चाहिए कि अपने पापा से बोल पैसे दे, तेरे पापा के पास बहुत पैसे हैं। रिथान्या ने ये बहुत कुछ सहा, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं सह पाई। 28 जून को वो अपनी फैमिली को बोलती है कि मैं मंदिर जा रही हूँ, अपनी कार लेके जाती है और अपनी कार के अंदर सेल्फ एग्जिट कर लेती है। दोपहर के 1 बजे रिथान्या की मॉम को कॉल आता है, तुम्हारी लड़की की कार सड़क पर खड़ी है और वो बेहोश है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। उसको पास के हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पता चलता है कि वो इस दुनिया में नहीं रही। मरने से पहले वो 7 वॉइस नोट अपने पापा के लिए छोड़ के जाती है। In one of her messages, she said that her parents might doubt her, but she wasn't lying. Everyone around me is acting. I don't understand why I'm silent or become like this. She also said, I could not carry on like this anymore. I don't want to be a burden to you all my life. This time I didn't make any mistake. I don't like this life. They are assaulting me mentally while he's torturing me physically. I don't like this life and I'm unable to continue my life. You and mom are my world. Until my last breath, you have been my hope. But I hurt you badly. You are unable to openly say this. Still, you are not able to see me like this. I can understand your suffering. I'm sorry, father. Everything is over. I'm leaving. In one of her messages, she said that her marriage to Kevin was part of a plan hatched by him and his parents. I'm unable to bear their mental torture daily. I don't know whom to tell about this. Those who listen want me to compose, claiming life will be like this only, and are not able to understand my suffering. दिस केस इज सो वियर्ड कि हम 2025 में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी बेटी के बाप से पैसे चाहिए ससुराल वालों को अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेटी का बाप ही पैसे देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बेटी दी है। तो अकॉर्डिंग टू रथान्या, बेसिकली उसकी जो मैरिज है केविन के साथ वो एक प्लान थी। ऐसा नहीं है लड़की ने ये सब बातें अपने पेरेंट्स को नहीं बोली कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे परेशान करते हैं, मुझसे पैसे मांगते हैं या मुझसे ज्वेलरी मांगते हैं और मुझसे बोलते हैं अपने पापा से पैसे लेके आ। उसने अपनी फैमिली को बताया कि फैमिली ने बोला ये सब चलता रहता है ससुराल में। उसके बाद लड़की किसके पास जाए, कहाँ पे जाए? लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है। सोचने पे ही कितना वियर्ड है कि मतलब उस लड़की के साथ इतना टॉर्चर हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे वो झेल ही नहीं पाई, उसको समझ में ही नहीं आया कहाँ जाओ। केविन और उसकी फैमिली इस टाइम पे जेल में है, उनकी बेल को डिसमिस कर दिया गया है, थोड़ा लो बचा हुआ है। आई एम सो हैप्पी। एंड ये केस ऑन गोइंग है, तो अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लड़का खूबसूरत हो या उसकी फैमिली रिच हो, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे ही लोग हो। अपनी लाइफ के डिसीज़न खुद लो, सोच समझ के लो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि चीज़ें सही नहीं है तो प्लीज़ उस पर आवाज़ उठाओ, क्योंकि जो रिथान्या के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ बी वेयर।